Hello students. So now we are studying different forms of the straight line. You know from class 9th or 10th, if your present age may be x years and my present age y years and the total is given as 70, then how we draw the line, you know very well from the graphical system. But how we form this equation? If the slope is given, 2 points are given, and there are so many 8 forms, total 8 forms we have to learn in class 11th to form the equation. कुल मिला के हमको ये इक्वेशन बनानी है. दो वेरिएबल्स हैं x और y, डिफरेंट कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी और हमको बनानी है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. You know from class 10th this type of equation, what we say, ax plus by equal to c. It is said to be the general form, general equation or the general form. What? Ax plus by plus c equal to 0 or equal to c. Now, first we start with the simple condition. When a line parallel to x-axis, you know, any line parallel to x-axis, it means it is maybe a distance or b distance above origin or below origin. Suppose it is a units above, then what we say, this is x, y is always a, so x is 0 but y is always a, so equation is said to be y equals to a or y equals to b or y equals to minus b or y equal to minus c and so on. Line parallel to x-axis, and equation of x-axis you know very well, y equals to 0. Clear? Now the second point, when the line is parallel to y-axis, by the way this is the line parallel to y-axis, then x is fixed. By the way, x equals to a, but y is always 0. So x equals to a, x equals to b, x equal to minus b, x equal to minus c and so on. And the equation of y-axis is nothing but x equals to 0. You know from class 9th and 10th. Simple revision. X equal to 0 is y-axis, y equal to 0 is x-axis. Any line parallel to y-axis, x equal to some constant, and any line parallel to x-axis is y equal to some constant. This is what we say equation of the first type. Second type, when a point and the slope is given, then it is said to be point slope form. Suppose a line is and its slope is given m, and one point is also given x1 y1. We want to form the equation. Any point, general point on the line, what we say, x and y. हमेशा हमको क्या suppose करना है? X and y is the general point on the straight line, and given points are always x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 and so on. But xy is any arbitrary point on this straight line. xy हमेशा क्या रहेगा? X abscissa, y ordinate. Now you know what is the formula for the slope from the first exercise? Y minus y1, x minus x1. If you cross multiply, what we are getting, y minus y1 equals to m, x minus x1. It is said to be the second number, that is point slope form. एक point given होगा और एक slope given होगा. अब slope दो तरह से given होता है. कैसे? Line makes angle of 75 degree from the x-axis. It means tan 75 is m. और कभी कभी डायरेक्ट m दे देंगे, m equals to half, m equals to minus 1. तो आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ m लिखना है. अगर थीटा गिवन है, कन्वर्ट इट इनटू tan थीटा, और m डायरेक्ट गिवन है. क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज पॉइंट इज 2 3, लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड एंगल makes 75 degree from the x-axis. It means first we have to calculate the slope. Slope means m. How we calculate tan 75? Trigonometry. नहीं आता तो trigonometry वाले वीडियोस देखिए. tan 75 का मीनिंग होता है tan 45 plus 30. And you know the formula, tan a plus b. So here tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b. जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमको कहाँ लगाना है? m की जगह.
x1 y1, y1 is 3, x1 is 2, सिंपल फॉर्म तैयार हो गई। उसको लास्ट में आपको कैसी इक्वेशन में फॉर्म में, जनरल फॉर्म में उसको लिख देना है। कैसी जनरल फॉर्म, जो हम 9th-10th में पढ़ चुके हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में आप आंसर को छोड़ देंगे। तो बताओ क्या समझ में आया, m गिवन होगा, x1 y1 गिवन होगा, करेक्ट। सेकेंड फॉर्म completed in this way. Now the third form, a small change, 2 points given but slope is not given, 2 points x1 y1 and x2 y2 given but slope is not given. क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़ चुके हैं। When 2 points are given we can calculate the slope, so from our side we have to calculate the slope. 2 points पता है तो slope मिल गया। अब स्लोप मिल गया, अब पिछली वाली फॉर्म लगा दो। क्या फॉर्म थी पिछली वाली, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब स्लोप को यहाँ लिख दो, तो ये बन गया 2 पॉइंट फॉर्मूला, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्मूला। है वही 1 पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है तो आपको स्लोप अपने आप से निकालना है, और उसमें क्या था, स्लोप उन्होंने दिया था, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, सपोज करो एक ट्राइंगल दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, से 2 3 5 9 11 -2, और क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब मीडियन का वापस 9th-10th पर आ जाओ। मीडियन का मीनिंग होता है मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला। सपोज इट इज ए, वी वांट टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ एडी। अब डी पॉइंट कैसे निकलेगा, 5 and 11 16 का हाफ, करेक्ट। 9 - 2 7/2। नाउ यू नो द 2 पॉइंट। अब किसको x1 y1 मानूं, x1 y1 x2 y2। कोई स्टूडेंट जो है तो बोलेगा x1 y1 x2 y2, सो इट इज टोटली योर चॉइस। x1 y1 x2 y2 किसको मानना है, आपकी चॉइस। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन BC, कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, यहां लगा दो, इक्वेशन तैयार। और किस फॉर्म में छोड़ेंगे लास्ट में, जनरल इक्वेशन। कौन सी जनरल इक्वेशन, 9th क्लास 10th क्लास, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। सो दिस इज नोन एज 2 पॉइंट फॉर्मूला, इजी। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम में आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले समझो इंटरसेप्ट क्या है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये स्केल है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, और एक लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, तो जितना x एक्सिस पे कट किया वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट, और जितना y एक्सिस पे कट किया वो क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। सो सपोज द लाइन इज लाइक दिस, x एक्सिस को जितना कट किया वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मींस कितना कट किया, और y को कितना कट किया वो क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। बोलो क्लियर, व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट। नाउ इन दिस फॉर्म व्हाट इज गिवन टू यू, इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट। एक तो स्लोप दे देंगे और एक इंटरसेप्ट दे देंगे, और वो भी कौन सा, y इंटरसेप्ट। सपोज करो कोई लाइन ऐसे जा रही है, दिस y इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू, से c। y एक्सिस को कितना कट किया वो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है, ये c इंटरसेप्ट है। इट मींस व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, 0, c, 100% श्योर। एनी जनरल पॉइंट यू नो, x, y, एंड इट्स स्लोप इज आल्सो गिवन बाय द वे m। थीटा पता है या स्लोप पता है। मैं हमेशा बोल रहा हूं स्लोप दो तरीके से देते हैं, या तो थीटा दे देते हैं और या डायरेक्ट m दे देते हैं। थीटा दे देते हैं तो उसका tan थीटा निकाल लो, और m दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा। सो m इज गिवन एंड c इज गिवन। नाउ 2 पॉइंट फॉर्मूला, x y पता है, 0 c पता है, m पता है। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y माइनस c x माइनस 0। बार बार वही फॉर्मूला काम में आ रहा है। स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस c इक्वल्स टू mx और y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, y इंटरसेप्ट गिवन होगा दैट इज c, और m गिवन होगा दैट इज स्लोप। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, फर्स्ट
इफ m इक्वल टू 0, फर्स्ट केस बताओ, अगर m 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, c, और y इक्वल टू c का मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये c और इससे लाइन ऐसे चली जाएगी, तो पहला केस क्या हो गया, लाइन y इक्वल्स टू c पैरेलल टू x एक्सिस, करेक्ट। सेकेंड केस, इफ c इक्वल टू 0, ये c इंटरसेप्ट 0 हो गया तो ये लाइन c है ही नहीं, तो c कहां से गया, ओरिजिन से, जब c बचा ही नहीं तो लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से, विच इंप्लाइज लाइन पासिंग थ्रू 0 0। तो जब भी किसी लाइन में c नहीं है इसका मतलब वो लाइन कहां से जाएगी, 0 0 से। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट करोगे लाइन पासिंग थ्रू 0 0, क्यों, क्योंकि इसमें c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वैसे भी सोचो यहाँ 0 0 लगाओ, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब लाइन किससे पास होगी, 0 0 से। तो जब कभी भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में c नहीं है इसका मतलब लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, व्हेन x एंड y m एंड c बोथ 0, c भी 0 और m भी 0, c भी 0 और m भी 0, which implies y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 आज हमने स्टार्ट में पढ़ा है, किसको बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बोल देंगे y इंटरसेप्ट बिलो द y एक्सिस दैट इज -3, ये भी y इंटरसेप्ट है क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है, कितना दे दिया, -3, एंड थीटा इज गिवन 30 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट m 1/√3, c -3, hence the equation is y equals to m x plus c, apply the formula, m is 1/√3 x and c, क्रॉस मल्टीप्लाई, टेक द एलसीएम, आपकी इच्छा, अलजेब्रा आपकी चॉइस, बट वी वांट आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म, दैट इज ax प्लस by प्लस c। तो क्या लिखेंगे, √3y x minus 3√3, hence x minus √3y minus 3√3 equal to 0. This is form number 4. So now we start exercise number 10.2. Question number 2. Point is given, slope is given. It means we have to apply point slope formula. Y minus y1 m x minus x1. Simplify तो अपने आप कर ही लेंगे, छोड़ देते हैं। Second sum. Now fourth sum. Passing through and theta is given. Theta is given but m is not given. So you have to calculate and revise trigonometry. You will get tan 75 as 2 plus √3. Homework में करना है। Now m is known, point is known, same question, y minus y1 equals to m x minus x1. Simplify कर लेंगे। Simplification मैं पूरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ। Complete करेंगे, आंसर शीट से चेक करेंगे, तब सेटिस्फाई होंगे, ओके। फिफ्थ सम, एक्स एक्सिस -3 पे कट कर रहा है, दिस इज -3 0, यहां से लाइन कट कर रही है, एंड एक्स एक्सिस m इक्वल्स टू इज गिवन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5th, विथ स्लोप -2, दिस इज -2, स्लोप -2, again point slope formula, y minus y1 equals to m x minus x1. origin से left में कहां पे कट कर रहा है, 3 distance, it means it will be -3 0, and the slope is given direct -2. Answer easy. Next, y intercept, this is 2, that is 0 2, and theta is 30 degree. Theta is 30 degree, it means like this. M equals to tan 30. Tan 30 means 1/√3. M is known, point is known, 0, 2. Y minus y1 equals to m x minus x1.
This is the first method. Second method, directly apply, because y intercept is given. Y equals to mx plus c. ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर. नेक्स्ट सम नंबर 7th, 2-point formula. Y minus y1, x minus x1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. फिर से चेक करो. y minus y1, x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. सॉल्व करेंगे. -5/3 x plus 1 y minus 1. 3y minus 3 equals to -5x minus 5. सबको इधर लाएंगे. 5x plus 3y minus 5 इधर आएगा. आंसर इजी. नेक्स्ट सम नंबर 9th. 3 points, 3 vertices of a triangle given to you, P, Q and R, and you have to calculate equation of median through R. Equation of median through R means R coordinate is known to you. How we calculate midpoint of P and Q? 10th class. P और Q का midpoint 2 and 2 0 and 1 and 3 2. Now equation of RS. 2-point formula. Y minus y1, x minus x1, y2 minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Check करो. Y minus y1 correct. X minus x1 correct. y2 minus y1 yes. x2 minus x1 yes. Y minus 5 cross multiply with -4 and -3 cross multiply. सॉल्व करेंगे. कैसे? -4y plus 20 minus 3x plus 12. So 3x minus 4y, this goes to this side. Answer. चेक करो. 3x minus 4y, ये उधर गया. That's correct. And the last sum for today's lecture is a good question. Passing through -3,5 but perpendicular to line joining these two. जो इसका स्लोप होगा वो लाइन उसके परपेंडिकुलर है. द मीनिंग इज 2,5 एंड -3,6. इसका स्लोप क्या होगा हम इजीली निकाल सकते हैं. दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस. कितना आया बताओ? -1/5 इज द स्लोप ऑफ द बेस लाइन, बट वी वांट परपेंडिकुलर टू इट. और इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी बताओ उसका स्लोप क्या होगा? m' होगा 5. Line passing through the point is given -3,5. Point is known. Now slope is known. So answer y minus y1 equals to mx minus x1. Y minus 5 equals to 5x plus 15. Hence 5x minus y plus 20 equal to 0. फिर से चेक करो. 5x correct. 5, 3, 15 correct. Y minus 5. So 5x minus y 15 and 5 20 equal to 0. ये क्वेश्चन हमने आज किए सिर्फ शुरू के 4 फॉर्म से रिलेटेड. कौन कौन सी? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2-point फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन इंटरसेप्ट इज ओनली ऑन वाई एक्सिस. तो यहां तक कंप्लीट करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 10. मिलते हैं. थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा. तब तक नेक्स्ट 4 मोर फॉर्म्स करने के लिए करेक्ट. पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए. और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक तो करना ही है. सो टेक केयर. बाय बाय.